Hello students, welcome to the YouTube channel of Welkin National School, Vasai East. This is Mrs. Deepa Vallakati, the subject teacher of science. Today we are going to learn chapter number 13, Changes Physical and Chemical from Standard 7th. Children, what are the causes of the changes occurring in our surroundings? There may be many of the causes just like the temperature changes, okay, and weather changing. These are all the some of the reasons. What is mean by the man-made change? Which are these changes? Man-made changes क्या होता है? जो इंसानों द्वारा बनाया हुआ चेंजेस जो रहता है ना क्लाइमेट के अंदर, जिसे हम मैन-मेड चेंजेस बोल सकते हैं. यस ना? What changes have taken place in the material seen in the following pictures? See, this is what the change of milk into the yogurt. This is a man-made change, correct? No? And the melting of the ice, this is natural because of the temperature. The germination, this is also natural. सीड के अंदर से जो पौधा उगने का रहता है ना, इसको germination बोलते हैं, correct? Remembering? Yes ना, this is natural. Now next one is boiling of the water. This is man-made. Next one is crackling. ये man-made है. यहाँ पे जो बॉनफायर है ये भी मैनमेड ही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ही मोस्टली बॉनफायर में ऐसे करते हैं. हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट कि सभी है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजेस हो रहा है. क्रैकलिंग ऑफ दिस थिंग्स ऑल्सो. विच पॉइंट यू विल कंसिडर वाइल क्लासिफाइंग द फॉलोइंग चेंजेस इनटू टू ग्रुप्स? फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, रस्टिंग ऑफ आयरन, रेनिंग, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, कटिंग वेजिटेबल्स. सी यहाँ पे है ना ह्यूमन चेंजेस क्या हो सकते हैं, मैनमेड चेंजेस क्या हो सकता है. यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब ये मैनमेड है, कटिंग वेजिटेबल्स ये भी मैनमेड है. अदरवाइज रेनिंग, लाइटनिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, fruits falling from the tree, these are all natural changes. Now, which of the above changes have occurred of their own according to the naturally? यहाँ पे fruit falling from the tree, rusting of the iron, raining, lightning, ये सब natural हैं जो अपने हिसाब से ही चलते रहते हैं. We have seen previously studied some examples of the changes. Changes like the ripening of the fruit, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क अकर नेचुरली. ये नेचुरली ही होता है क्योंकि हम लोग जानबूझ के कोई मिल्क को ख़राब नहीं करते हैं. हाँ, मिस हैंडलिंग के वजह से ये हो सकता है. दीज आर कॉल्ड द नेचुरल चेंजेस. कैन यू थिंक ऑफ द अदर एग्जाम्पल ऑफ सच नेचुरल चेंजेस? नेचुरल चेंजेस जस्ट लाइक रेनिंग है, लाइटनिंग है, थंडरिंग है, अर्थक्वेक्स है. दीज आर ऑल नेचुरल चेंजेस. We see man-made materials in our day-to-day life. We see man-made materials surrounded by us. Yes ना? For what purpose are they produced? इसको क्यों प्रोड्यूस किया है? हम लोग कुछ चीज़ों को we always want to make our life more comfortable. That is why we are creating the new things. Those are man-made things. Yes, no? Many changes such as the sharpening of the pencil, baking bread, cooking food are useful for us. Yes na? So these are also these are the man-made, but these are useful changes. Okay, तो यहाँ पे कौन सा चेंजेस मिला है हम लोग को? नेचुरल मैनमेड के अलावा मैनमेड के अंदर यूजफुल चीज़ें मिला है. दैट इज यूजफुल चेंजेस. द चेंजेस दैट आर नॉट यूजफुल फॉर द चेंजेस यूजफुल एग्जाम्पल they will make the harmful changes. Example, making the pollution, noise pollution, these are all harmful changes. These are also, ये भी किसने बनाया है? मोस्टली ह्यूमन और नेचर दोनों ने ही बनाया है. अंडरस्टूड? थिंक अबाउट इट. कैन यू नाउ क्लासीफाई द नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस यू हैव लिस्टेड एज यूजफुल एंड हार्मफुल चेंजेस? येस, नो? हम लोग इसको लिस्ट आउट कर सकते हैं. बहुत सारे चीज़ें जो हम लोग हमारे काम के लिए काम लेते हैं, दोज आर नेचुरल. ओके, एंड दोज आर मैन मेड. लेकिन कुछ यूजफुल भी रहते हैं, कुछ हार्मफुल भी रहता है. सो फार वी हैव स्टडीड सर्टेन टाइप्स ऑफ चेंजेस. वी कैन टेल अबाउट
two of these, namely bursting of a balloon and ripening of a fruit. Okay, so ये balloon जब burst out होता है या फिर fruit ripening होता है. Okay, so bursting out balloon is what, this is a harmful because यह इसकी वजह से हमारे क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है. नेक्स्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट. राइपनिंग ऑफ फ्रूट ये स्वीट रहता है और जिसको खाने से हम लोग को हेल्थ मिलता है. दिस इज यूजफुल. यस, नो. नाउ from the point of view of your duration, their duration, that is time they have to take happen. Yes, na, some changes are fast and some changes are quick changes. Some changes we can name as a slow changes. Example, bursting of the balloon, whistling. Okay, these are all quick changes. ये जल्दी होते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. लेकिन कोई चीज़ just like जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट, ओके, या फिर फ्लावरिंग को ओपन होने के लिए, ये सब स्लो प्रोसेसेस है. सो दैट इज़ वाई दे विल बी नेम्ड एज अ स्लो चेंजेस. ओके, नाउ गिव सम एग्जाम्पल ऑफ फास्ट एंड स्लो चेंजेस दैट अकर इन योर सराउंडिंग. कैन यू नेम सम ऑफ देम? यस. ओके, एग्जाम्पल, हम लोग कोई चीज़ को तोड़ रहे हैं, दैट मीन्स कोई प्लांट को हम लोग कटिंग कर रहा है, दैट इज़ अ ईजी प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस. बट वही प्लांट को उगाना है, वही प्लांट को ग्रो करना है, दैट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. अंडरस्टूड? हैव सम फन हियर. पीसेस ऑफ द ग्लास बैंगल्स, कैंडल्स, मैच बॉक्स एक्सेट्रा. ये ले लीजिए और क्या कीजिए, हम लोग बैंगल से तोरण बनाते हैं. जो कांच के बैंगल्स रहते हैं ना, वो यूज़ कीजिए, अदरवाइज प्लास्टिक. बट डू इट in front of your and in the guidance of any of the elderly people. Okay, hold some piece of the glass bangles in the candle flame, supporting it with your fingers. Okay, now उसको fingers से support कर दीजिए. Now take care of the heat and piece of the middle, keeping its two ends outside the flame. Okay, क्या कीजिए, उनको है ना एक जगह से गर्म कर दीजिए तो वो टूट जाएगा. उसको आप दूसरे के अंदर बेंड करके उसको जॉइंट कर सकते हो. इस तरीके से हमारा तोरण रेडी हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा है, हम लोग ने ये देखा है कि कोई तो एक चीज़ हम लोग उसका शेप चेंज कर रहे हैं, उसका मास चेंज कर रहा है. यस ना. नाउ यू मेड अ लिंक फ्रॉम द ग्लास पीसेस. नाउ हाउ विल यू चेंज इट्स शेप ऑफ अ लिंक टू गिव इट्स ओरिजिनल शेप. क्या हम लोग उसको फिर से ओरिजिनल शेप दे सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है. हाउ विल यू रिस्टोर द ओरिजिनल कैंडल आफ्टर मेल्टिंग वैक्स. अगर कैंडल मेल्ट हो गया तो वो मेल्टिंग वैक्स से हम लोग फिर से एक कैंडल बना सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो ग्लास पीसेस से हम लोग ने तोरण बनाया, उससे फिर से ग्लास बैंगल बना सकते हैं क्या? नो, नॉट पॉसिबल. सो some of the things are reversible and some of the things are irreversible. Example, milk से हम लोग योगर्ट बना सकते हैं. this is what? irreversible. क्यों? क्योंकि हम लोग योगर्ट से फिर से मिल्क नहीं बना सकते. कैन वी? नो. बट हम लोग आइस से वाटर फॉर्म कर सकते हैं और वाटर से आइस फॉर्म कर सकते हैं. दिस इज रिवर्सिबल चेंज. मेल्टिंग सम वैक्स एंड ऑब्टेनिंग द ओरिजिनल सॉलिड वैक्स अगेन in something that we can be do repeatedly. yes ना, ये हम लोग बार बार कर सकते हैं. वैक्स को मेल्टिंग करो, उससे फिर से कैंडल बनाओ, फिर से वैक्स बनाओ. yes ना, जिसको हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जा सकते हैं. इस चेंजेस को हम बोलते हैं रिवर्स changes, reversible changes. Now mango ripe however cannot transform back into the raw mango. एक पका हुआ मैंगो को हम लोग फिर से कच्चा मैंगो बना सकते हैं क्या? ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है. सो द चेंजेस विच विल नॉट गोना बी टेकन प्लेस टू द बैक फॉर्म, दोज विल बी कॉल्ड एज अ इरिवर्सिबल चेंजेस. ओके, wood cannot be obtained from the ash formed on burning the wood. क्या हम लोग कोई लकड़े को जलाने के बाद में वो राख से हम लोग फिर से लकड़ा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते. दिस इज व्हाट? इरिवर्सिबल चेंज. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट कम्स आफ्टर द डे टाइम. डे टाइम के बाद क्या आता है? नाइट आता है.
नाइट के बाद फिर से डे आता है, लेकिन इन सब का एक स्पेसिफिक टाइमिंग है, करेक्ट ना। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सनराइज? सनराइज के बाद में क्या होता है? सनसेट होता है कुछ टाइम के बाद में, दैट मीन्स हाफ डे के बाद में। व्हाट कम्स आफ्टर द हाई टाइड इन द सी? हाई टाइड्स आने के बाद फिर से लो टाइड आता है। अ हाई बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लाइज अवे। ओके, जब कोई बर्ड बैठा हुआ है फ्लाइज के ऊपर, वो एक ही जगह पे बैठा हुआ रहेगा क्या? नहीं, इधर उधर घूमेगा। फ्लडिंग, मेट्रो स्ट्राइकिंग अक्रॉस द स्काई, इन सब में आपको क्या दिख रहा है? ये देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं ना पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है, और किस चीज़ों का टाइमिंग हम लोग को डिनोट करना या फिर अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं है। ऑन कंसिडरिंग द अबव एग्जाम्पल वी फाइंड दैट सम चेंजेस अकर अगेन एंड अगेन आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ द टाइम। यस ना, कुछ टाइम के बाद में ये बार बार होता रहता है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक चेंजेस। एग्जाम्पल सनराइज एंड सनसेट, यस ना। क्लाइमेटिकल चेंजेस, ये जो हम लोग का क्लाइमेट चेंज हो जाती है, सीजन चेंज हो जाती है, ये सब हमारा पीरियोडिक चेंजेस हैं। ऑन द अदर हैंड इट कैन नॉट बी सेड दैट फॉर श्योर व्हेन सर्टेन चेंजेस विल रिकर आफ्टर वन अकरेंस, कि जस्ट लाइक एक बार बर्ड है ना ट्रीज के ऊपर जाके बैठ गया है, ये वो कब उड़ेगा हम लोग बता सकते हैं क्या? नहीं। उसके अलावा एक बार फ्लड आया है, दूसरे टाइम कब बाढ़ आएगा हम लोग बता सकते हैं क्या? नो। एक बार मेट्रोर गिरा है, वो नेक्स्ट टाइम कब गिरेगा बता सकते हैं क्या? नहीं। सो इवन इफ दे रिकर द टाइम इंटरवल इज नॉट फिक्स्ड इन दिस केसेस, such changes are called non-periodic changes. Now can you tell me that which type of changes is the change of seasons? This is what change of season from summer to the rain to the winter. This is a periodic, क्योंकि ऑलवेज हम लोग ने हमारे ईयर को 3 सीजन्स में डिवाइड करके रखा है, दैट 4 months each for one season. Yes, no? Which hands of the clock shows the periodic changes of the from 6 AM to the 6 PM? How many times? ओके 6 AM से लेकर 6 PM तक वो वन साइकिल कंप्लीट करता है। यस नो। नाउ ऑब्जर्व विच ऑफ द चेंजेस शोन इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड आर टेम्पररी। यहाँ पे कौन सी चीज़ें टेम्पररी हैं और कौन सी चीज़ें परमानेंट हैं? ओके, विच ऑफ द चेंजेस आर परमानेंट? चेंजेस आर परमानेंट, यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट दिख रहा है क्या? नो। In which the changes did the original matter undergoes the change? यहाँ पे ओरिजिनल मैटर कहाँ पे चेंज में हो रहा है? एग्जाम्पल यहाँ पे रॉ मैंगो टू द राइपनिंग मैंगो। ओके, यहाँ पे ओरिजिनल चीज़ें चेंज हो रहा है, उसके टेस्ट में भी, कलर में भी, फ्लेवर में भी। सेकंड में यहाँ पे ओरिजिनल चीज़ें चेंज नहीं हो रहा है। थर्ड में उसका शेप चेंज होएगा, उसका स्मेल और उसका मैटर सेम रहेगा। फोर्थ में उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन बाकी सब सेम रहेंगे। इन विच डिड द ओरिजिनल मैटर रिमेन अनचेंज्ड? द ओरिजिनल मैटर रिमेन अनचेंज्ड इन द सेकेंड एंड इन द फोर्थ वन। ओके, इन विच द चेंजेस वॉज अ न्यू सब्सटेंस ऑफ अ न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड। यहाँ पे न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रॉपर्टी कहाँ पे हो रहा है? From the first and third. Okay, in some of the above example of the changes, the properties of the original substances remain same. In this their composition remains unchanged. यहाँ इसके compositions change नहीं हो रहा है, करेक्ट ना? सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई नया चीज़ फॉर्म नहीं हुआ है, तो जिसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ओके, यहाँ पे देखो ग्लास के अंदर से बर्फ़ डाला है, वो बर्फ़ पानी में चेंज हो गया है, दिस इज़ फिजिकल चेंज, उसका शेप चेंज हो गया है। यहाँ पे फ्लावरिंग का भी वही है, यस ना। और ये आयरन नेल्स जो डाले हैं ना कोई पाउडर के अंदर, सॉडस्ट के अंदर, वहाँ पे भी वही है। लेकिन यहाँ पे जो रॉ मैंगो है वो राइपन मैंगो में चेंज हो रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हुआ है, यस ना। This is not a physical change, this is a chemical change. The change due to which one substance is transforming into the another substance having a new and different properties is called chemical change. Okay, raw mango बहुत sour रहता है, लेकिन ripening mango टेस्टी और स्वीट रहता है। यहाँ पे उसका कॉम्पोजिशन भी चेंज हो गया, साइज नहीं चेंज हुआ है, लेकिन उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज चेंज हो गया। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट केमिकल चेंज. What processes occur during the change
of the state of matter. What happens when the water is taken into a bowl and heated up? It will transform into the, when a ice is taken into the bowl and it will be heated up, it will first convert into the water, then afterward into the water vapor. The process of formation of the vapor from the liquid is called evaporation. Drying of clothes, formation of salt from the sea water are possible due to the evaporation. Yes ना? सॉल्ट हम लोगों को कहाँ से मिलता है? जब सी वाटर के अंदर से वाटर उड़ जाती है, वाटर एवोपरेट हो जाती है, तब हम लोगों को सॉल्ट मिलता है. या फिर कपड़े के अंदर से पानी कब सूख जाता है? जब हीट उसको अब्जॉर्व कर लेता है, एवोपरेट हो जाती है पानी उसके अंदर से, तब भी. We have studied some processes that are a part of our water cycle. Which are these processes? Yes, no? Do the original properties of the water changes during these processes? क्या ये processes में water अपना प्रॉपर्टीज खो लेती है क्या? समटाइम्स इट हैपेंस, क्योंकि ये रेन वाटर जब ज़मीन के अंदर आ जाती है ना, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स या फिर बहुत सारे सॉल्ट्स एड अप हो जाती है, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. ओके, सो वी हैव लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग एक्सेट्रा. दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज. नाउ विच आर द फॉलोइंग आर द फिजिकल चेंजेस with the chemical? Make a table from the table and form wood, burning wood, breaking of the glass object, ripening of the tomato, rusting of iron. ओके, यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ग्लास ऑब्जेक्ट ब्रेक होना ये फिजिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ वुड ये केमिकल चेंज है. ओके, ripening of the tomato, this is also a chemical change. Rusting of iron, this is also a chemical change. ओके, जहाँ जहाँ पे केमिकल प्रोसेसिंग होता है वो सब केमिकल चेंजेस हैं. नाउ apparatus, evaporating dish, sugar, burner, tripod, etc. Procedure: take some sugar in the evaporating dish. एक डिश के अंदर शुगर ले लीजिए. प्लेस द डिश ऑन द ट्राईपॉड ऑन हीट इट एंड उसको हीट कीजिए. ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द शुगर. Stop heating when the blackish substance is seen at the bottom of the evaporating dish. Okay, what will happen when we keeps on providing the heat to the sugar? No, it will turn into the blackish color sticky substance. Yes, no? What kind of changes that the above process burning take place? कि जो शुगर स्वीट था वो यहाँ पे एकदम डिफरेंट कलर का हो गया है. जो ट्रांसपेरेंट कलर जैसा शुगर था वो यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, ब्लैकिश फॉर्म बन गया है. वो जो स्वीटनेस वाला शुगर का टेस्ट था वो भी यहाँ पे चेंज हो गया है. यस ना? दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस. Corrosion: when an iron article rust, a reddish brown layer forms on it. Yes ना? जब कभी भी कोई आयरन की चीज़ें हम लोग बाहर रखते हैं, वो कुछ टाइम के बाद में, कुछ दिनों के बाद में एक रेडिश कलर का है ना, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कोरोजन. ओके, जिसको हम बोलते हैं जंग पकड़ लिया हिंदी में. एक्सक्लूड दैट, जब कोई ब्रास या फिर कॉपर आर्टिकल्स रहते हैं ना, उसके ऊपर ग्रीनिश कलर का लेयर आ जाता है. दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ ऑल्सो अ कोरोजन. Okay, corrosion mostly takes place what? On the metals. Things becomes weak due to the corrosion. Corrosion के वजह से वो things weak हो जाती है, उसका strength कम हो जाती है. Corrosion is caused by oxygen, moisture, vapors of the chemicals in the air. Okay, कोई ऑब्जेक्ट कोरोड कैसे होते हैं? जब वो ऑक्सीजन के साथ में मिलती हैं, मॉइस्चर जहाँ पे प्रेजेंट रहती है या फिर वाटर वेपर जहाँ पे प्रेजेंट रहती है, उस जगहों पे, डैम्प प्लेसेस पे, तो केमिकल चेंजेस होता है. दैट मीन्स ऑक्सीडाइज होते हैं मेटल्स. मेटल ऑक्सीडाइज होके मेटल ऑक्साइड बनते हैं और वो खराब होने लगते हैं. वाइल क्लासिफाइंग द चेंजेस वी हैव टेकन इनटू द अकाउंट ओनली ऑफ द क्राइटेरियन एट द टाइम. हाउएवर द नंबर ऑफ द डिफरेंट क्राइटेरियाज कैन बी अप्लाइड टू द सेम चेंज. ओके, एक ही चेंज में बहुत सारे क्राइटेरियाज भी हो सकते हैं. ओके, do you know an iron article is given a thin coat of the zinc to prevent the corrosion? जिंक का है ना एक लेयर डालते हैं, पाउडर्ड जिंक या फिर एक जिंक का पेंट डालते हैं, जिसकी वजह से आयरन की चीज़ों को है ना रस्टिंग नहीं होता है, कोरोजन नहीं होता है. कॉपर एंड ब्रास आर्टिकल्स आर कोटेड विद द टिन. दिस इज कॉल्ड अ टिनिंग. यस ना? और हिंदी में इसको बोलते हैं कलाई डालना.
In this age of the technology, a new process is called the powder coating has been developed. Okay, यहाँ पे powder coating भी develop हुआ है, जिसमें क्या होती है, the coats of various colors are applied on metals like the iron, aluminium. They prevent the corrosion of the metals. इसके वजह से ये powder coating करने से metals corrode नहीं हो पाएंगे. Students, thanks for watching this video.